دنیا کے اندر کچھ چیزیں بڑی زیادہ ضروری ہوتی ہیں، ان کے بغیر وقت اگر کبھی بیت بھی جائے تو پھیکا گزرتا ہے۔ ان میں بڑی اہم چیز محبت ہے۔ ایک گھر کے اندر دولت بھی ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، سارا کچھ ہو، پر میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو گھر کا نظام ٹھیک آپ کسی آفس میں کام کرتے ہو نا، بس جی آپ میری بات پہ توجہ کریں، اور میری خواہش ہے آپ موبائلوں کی بجائے مجھے دیکھیں۔ اس کو آپ میری خود پسندی نہ سمجھ لیجیے گا، لیکن یہ کہ دو ایک ساتھی چار ساتھی بنا لیں، سارے اسی کام لگ جائیں گے تو تھوڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے، اور تھوڑی سی باتیں کر کے آپ توجہ کریں۔ کسی آفس میں کسی جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہوں، کسی بھی ادارے میں، ادارے کے صدر نشین کے ساتھ، اس ادارے کے بڑے کے ساتھ اگر آپ کی کسی وجہ سے محبت نہ ہو، تلخی ہو، تو دفتر جانا، کام کرنا بوجھ بن جاتا ہے۔ محبت کے بغیر آپ ڈیوٹی نہیں کر پاتے، کیسے یاد وقت گزاریں، عجیب سی تلخی ہے۔ آپ ٹیچر کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے استاد صاحب، اور وہ ماحول اس طرح کا بن گیا کہ اب وہ ایک پوزیشن ضد والی ہے، تو دونوں انسان ہی ہیں۔ محبت نہ رہے تو وہ تعلیم و تعلم کا کوئی معاملہ مزیدار نہیں رہتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ محبت اتنا ضروری کام ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ اس کے بغیر نا، میں نے کہا اگر وقت گزر بھی جائے تو پھیکا پھیکا گزرتا ہے، تکلیف دہ گزرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ وقت ٹھیک نہیں گزرتا، اور ایک آپ کا اپنا وقت نہیں۔ یعنی ایک میری طرح کے امام صاحب وہ ہیں جو کہتے ہیں اوہو ابھی عصر پڑھائی تھی، مغرب کا ٹائم پڑھا اس نے بھی دی نماز، لیکن تھوڑا طبیعت مزہ نہیں آیا۔ اور ایک وہ تھا جس نے کہا بڑا شکر نہیں رب کا، کوئی کس وقت آ رہا ہے، کوئی کس وقت آ رہا ہے، میں نے کنجیاں لی ہیں تو وقت پہ جا کے رب کے گھر کا دروازہ تو کھولتا ہوں۔ ایک وہ نعت خواں تھا جس نے آپ کے ساتھ طے کیا تھا کہ میں کلاس کے علی پور چٹھا گجرانوالہ آؤں گا تو میں آپ سے 25,000 لوں گا۔ آج اللہ طے ہوگی بات، پھر اس کو آپ نے کہا 4 کلومیٹر اندر جانا ہے، تو بگڑ جاتے ہیں سڑک پہ۔ کہتے وہ تو وہاں کی بات ہوئی تھی، 5 اور لوگ لے لیا آپ نے، لے لیا اس نے، آ گیا وہ، لیکن وہ تلخی آ گئی ماحول میں، مزہ نہیں آیا، سرور اسے بھی نہیں آیا، پیسے لے کے بھی اسے نہیں آیا۔ ایک وہ تھا کہ وہ آیا تھا وہاں، تو آپ نے کہا بھائی میاں 10 کلومیٹر اندر جانا ہے، اس نے کہا جناب چلیں گے، جہاں جہاں یہ گاڑی چلے گی قیامت میں ہمارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی۔ اس کو لطف آتا ہے۔ آپ کسی کام کو بھی نا، ہمارے ارشاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کرو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کام کر بھی لیا تو پھر بھی تھکے تھکے سے پریش کرو، تو ذرا مزہ لے کے کرو۔ آپ کا اپنا کام آپ کا شوق بن جائے تو آپ کو، میرے ایک دوست نے ایک دن مجھے کہا کہ یار چل ذرا مری چلے گھومنے کو، ایک ہفتہ، کالج کے ایک دوست تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو نہیں جاتا، مصروف ہوں۔ کہنے لگی یار میں تو بڑے دنوں کا بور ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا میرا کام مجھے بور ہونے ہی نہیں دیتا، میں جب ہوں گا تو تجھے بتاؤں گا۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بالخصوص نوجوان دوستوں کو کہ جب آپ کسی چیز کو تازے ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے تازے ہو جاتے ہیں، یہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں یہ سارا دین محبت والا ہے، سارا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب فرماتے ہیں جب لوگ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ کے مومن ہوتے ہیں تو رب سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ پھر تو آ کے پوچھتے ہیں نا صحابہ حضور سے، تو بڑا دل کرتا ہے اس سے ملنے کو جس کے لیے ہم سجدے کرتے ہیں۔ اور حضور نے حدیث میں فرمایا بھی، فرمایا جو، ادھر دیکھیے میری طرف، کریم فرماتے ہیں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ محبت، اللہ کی محبت جوش مارے، طبیعت میں ذوق آئے، یہ سارا بندن جب دیکھیں نا، اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارا کچھ۔ رب چاہے تو سب کے دل موڑ دے دین کی طرف،
चाहे तो मोड़ दे। लेकिन उसने कहा कि मैंने ना तुम्हें एक महबूब दिए हैं बना के सजा के सवार के, मैंने शानों वाले महबूब दिए हैं, तुम मेरे महबूब की शानें देखो, अजमतें देखो, फजलो कमाल देखो, जूदो नवाल देखो, हुस्नो जमाल देखो, ये देखते जाओ और मोहब्बत करते जाओ मेरे नबी से और कलमा पढ़ते जाओ। मोहब्बत के साथ ढाला गया। बेटा बातें ना करो यार, इधर देखो। आप जब प्यार करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, आपको महसूस होता है कि चीजें बोझ नहीं बन रही। और मुसलमान जिस चीज में सबसे मजबूत, जिस गिरा पे बंध जाता है, वो गिरा भी मोहब्बत, वो गिरा भी। एक बेटी को होती है कि शादी से पहले ना उसकी अम्मा उसे कहती है, पुत्र तू देर से उठती है, सवेरे तो सास तेरी बातें करेगी, जल्दी उठी। कहती है अम्मा जी ठीक है, कोशिश करूँगी। सवेरे फिर देर से उठी। अम्मा कहती है मैंने 20 आवाजें दी, कहती मैंने सुनी कोई नहीं। अम्मा कहती मैं तेरे सराहने खड़ी थी, तूने कैसे नहीं सुनी? वो कहती अच्छा अम्मा उठ जाऊंगी ना जब ससुराल तो देखी जाएगी, अभी तो सोने देना। ये रवैया आज है उसका, ये रवैया आज है। फिर उस बेटी की शादी हुई, फिर रब ने उसे एक बेटा दिया। पूरी तरह सी नहीं करता तो उठ के फौरन खड़ी हो जाती है। पहले घंटा लेती थी वहां से उठ के वॉशरूम जाने में, मुंह देने में, अब पता नहीं 1.5 मिनट में कैसे फीडर में दूध डाल के ले आई है। इससे पूछो अब तुझे क्या हुआ, तो कहने लगी पता कोई नहीं, बेटे का प्यार सोने ही नहीं देता। ये जवान लड़का, नौजवान, ये हर ईद पे लड़ाई करता अब्बा जी से, मैंने नहीं लेना 5000 का भी कोई सूट आता है, मैंने नहीं लेने इतने पैसे, मुझे तो तगड़े चाहिए। फिर हालात बदले, इसकी अपनी औलाद, फिर बीवी को कहते हैं ईद वाले दिन के तू बच्चों के कपड़े बना ले, मेरे नहीं है। तो उसे कहे कल तो तू यूं कह रहा था, तो कहता तुम्हें पता नहीं ना सीने में औलाद की मोहब्बत जोश कितना मार रही है। मेरी बात को आप समझ लें, जब प्यार हो जाता है ना, प्यार, लोग कहते हैं जनाब ये आप जो बात बताते हैं कि सहाबा किराम वाले रिदवान हुजूर का लुआबे दहन चेहरे पे मल लेते थे, कुल्ली का पानी वजूद पे मल लेते थे, वजह क्या थी? मैंने कहा बंदा दूर दूर हो ना किनारे पे, तो उसे क्या पता चले पानी की गहराई कितनी है? मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता, तू पहले प्यार करना। मेरा रब कहता है महबूब आप इनसे कहें, इको जरा कम करेंगे इसकी। अल्लाह फरमाता है इनसे कहे कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप इनसे फरमाएं कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं ना, फत्तबिऊनी, तो महबूब आपकी पैरवी करें, आपकी गुलामी करें, आपके नक्शे कदम चलें। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। हमारे सूफिया ने ना सारी जिंदगी असबाब की मोहब्बत के पढ़ाए, उन्होंने प्यार की बोली बोली। वो जहाँ चहके, जहाँ रुके, जहाँ बैठे, उन्होंने यही कहा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उन्होंने समझाया इस बात को कि जब प्यार हो जाएगा ना तो मसले खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। जब मोहब्बत हो जाएगी तो रंग खुद ब खुद बदल जाएगा। जब प्यार हो जाएगा ना, बहुत सारे लोगों ने ये बात की। हम जब दुनिया में निकलते हैं तो लोग तस्करे छेड़ते हैं, वो कहते हैं देखो जी फलां बान तो बात ही नहीं हुई, शान मुस्तफ़ा भी होती रही, अज़मत मुस्तफ़ा भी होती रही, आप फलां फ़ज़ाइल खसाइल शुमाइल ही बयान करते रहे। तो मैंने कहा हमारे बुजुर्ग मसला समझ गए थे ना कि इन्हें हुजूर की शानें बताओ, ताकि इतना प्यार करें मदीने वाले से, इतना प्यार करें कि आगे पीछे हो ही ना सके। एक होता है किसी चीज़ का पेट भरने के लिए खाना, और एक होता है कि बंदा खाना खाए तो साथ उसका मतलब, यानी एक दफ़ा सब्जी पक जाए ना घर में, बच्चों की पसंद ना हो, तो अम्मा पका के रोटी सामने रखती है, तो वो देख के प्लेट के अंदर हालांकि भूख लगी है लेकिन खाना पसंद का खामोश एहतजाज कर रहा है, मैंने नहीं खाना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अम्मा ने ना अभी
पूछा ही है इसने आके कि क्या पका है, तो मैंने उसको बताया मेरी इंसान की सब्जी पक रही है, तो 3 दफा पूछ लिया कब पकेगी कब पकेगी, और एक की बजाय 1.5 रोटी खा गया। एक होता है खाना, एक होता है मजेदार खाना। मेरी बात की समझ आ रही है? एक है मोमिन होना और एक है ईमान का मजा आना, ईमान का सुरूर आना, ईमान का जायका नसीब होना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें पैदा करो, तुम्हें ईमान का जायका नसीब हो जाएगा। तुम्हें ईमान का 3 चीज़ें पैदा करो, 3 चीज़ें। एक तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो। हमें बड़ी चीज़ों से प्यार होता है, मानते नहीं, बड़ी चीज़ों से। कुछ लोगों को शोहरत से प्यार होता है, अपनी फ़ोटो देख के राज़ी होते रहते हैं, वॉलपेपर लगाया हो, किसी ने आके कह दिया ना फलानी जगह पे आपका जिक्र हो रहा था, तो जनाब ऐसे जैसे कद जाओगे। कुछ लोगों को खुशामद बड़ी भाती है, ना माने वो पर भाती है, कुछ लोगों को भाती है। आप तारीफ कर दें तो वो आपकी और ख़त्म होगी बात। इसलिए बाकायदा रटी रटाई बातें। आपने तो एक सादा सा नकीब, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, वरना हमारे जो नकीब होते हैं ना माँ अल्लाह खैर, उन्होंने ना जी पक्के रट्टे लगा के, यार मेरी तरह का छोटा आदमी जब वो अलकाबाद के बीच अपने आप को तलाश करता है तो परेशान हो जाता है कि ये किसकी बात कर रहे हैं भला, क्यों इस तरह की बातें करने की क्या ज़रूरत है। किसी बंदे से किसी की अकीदत हो तो वो लफ्ज़ों में समझी जा ही नहीं सकती, वो अमल बता देता है कि बंदे को बंदे से प्यार है। खुशामद लोगों को भली लगती है। हज़रत सादी शिराज़ी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। बड़ा वज़ीर भला कौन होता है जिसे बड़ी खुशामद, अच्छा चापलूस हो तो ओदा बड़ा। दाएं बाएं रहते शांति लोग हैं, इसलिए हकीकतों से पर्दे उठने नहीं देते, असल चीज नजर आने नहीं देते। अजीज दोस्त, खुशामद भी लोगों को, आपने नाराज नहीं होना, आपकी थोड़ी बात करने लगा हूं मैं तो कसे बाशा पता नहीं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पैसों से भी प्यार होता है, जेब में पैसे हो तो तंदुरुस्त से लगते हैं। आपकी थोड़ी बात की है मैंने तो कहा पता नहीं किसकी कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे हों तो सेहतमंद लगते हैं, ना हों तो बीमार से, कमज़ोर से। और लिखा भी है बाज़ दानिश्वरों ने कि पैसा और इल्म ये बंदे को एतमाद देता है। जायज़ हो ना पैसा तो बंदे को एतमाद देता है कि नहीं भाई हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो प्यार तो हम करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, ना माने पर करते हैं। दावा ज़्यादा अम्मा ही करती है बच्चों से प्यार का, वैसे बेटा सोया भी हो तो अब्बा देख के राजी होता है। अम्मा का प्यार भी कोई कम नहीं होता मेरे अजीज, मोहब्बत चीज़ों से होती है, हम नहीं मानते। हमें हमारे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सबक दिया, फरमाया अगर चाहते हो ना मोमिन होने का मजा है तो फिर हर चीज़ से बढ़कर रब रसूल से प्यार। और ये तजर्बा करके देखें, मुकद्दम करें अल्लाह रसूल को। आप ये तजर्बा करके देखें, ये इखलास ला के देखें, आपकी नमाज मज़ेदार हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि कुरान मजीद की तिलावत आपको अपनी तरफ माइल करती है। आप महसूस करेंगे कि आप तकरीर से उठकर दावत दीन के मनसब पर फायज होने लगे। आपकी महफिल तबलीग का रुख इख्तियार करने लगी। शर्त ये है कि मुकद्दम करें अल्लाह रसूल। हम ना क्योंकि निरे नारों के कायल हैं, इल्ला माशाअल्लाह, हकीकतों का सफर बड़े कम लोग करते हैं। और वैसे भी दूर रह के ज्यादा लोग फैसले करते हैं, करीब जाके चीजों को परखते हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ना हकीकतों के मुसाफिर थे, सच्ची और खरी बात करते थे, इसलिए कि जब तक आप डॉक्टर को मर्ज नहीं ना बताएंगे उतनी देर वो दवाई काहे की देगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह, वो सच्ची जुबान कि जिनकी ताईद में अल्लाह कुरान पाक नाजिल फरमा दे। हज़रत उमर ने हुजूर के सामने खड़े होकर सच्ची बात की, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ना आप हर चीज़ से ज़्यादा, लेकिन या रसूल अल्लाह मुझे अपनी जान आपसे भी ज़्यादा, सच्ची बात। तो
हम पता क्या करते हैं, हीरा नारा, उसके बाद छुट्टी, परख के तय करके, यानी वो गोया बता रहे हैं कि हुजूर बरादरी कुर्बान करनी हो तो मैं तैयार हूँ, माल कुर्बान करना हो तो तैयार हूँ, औलाद कुर्बान करनी हो तो, लेकिन हुजूर मुझे जान आपसे ज़्यादा प्यारी है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया चल आहिस्ता आहिस्ता वो भी सही हो गया। उन्होंने सच्ची बात की थी तो हुजूर ने भी दो टोक बात की, उनके सीने पे दस्त मुबारक रखा, फरमाया उमर अभी ईमान कोई नहीं मुकम्मल हुआ। यहाँ से भी पक्का और खरा जवाब आया कि अभी ईमान नहीं मुकम्मल हुआ। शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शायद हुजूर के दस्ते पाक का ही फैज़ था कि हज़रत उमर फौरन ही बोले कि या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें, मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूँ। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हुआ है। अल्लाह तो फरमाया कि अब ईमान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकद्दम करो, हर चीज़ से बढ़कर तुम्हें प्यार हो अल्लाह और उसके रसूल के साथ। नौजवानों में आपसे एक बात अर्ज करूं, कच्चे पक्के काम को नहीं मज़ा देते, काम पक्का ही मज़ा देते। यानी दो कश्तियों का मुसाफिर कैसे किनारे पे लगेगा, दो घरों में खाना हो ना, हमने खुद तजर्बा किया, दो घरों में खाना हो तो एक से भी नहीं मिलता पूरा, क्योंकि वो पिछले कहते हैं कि अगले, तो अगले कहते हैं कि पिछले। दो घरों का मेहमान कैसे सैर होगा भाई। कच्ची पक्की बातें ना करो, कच्ची पक्की नहीं, पक्की बात। हुजूर से प्यार हो तो फिर पूरा हो। फाज़िल बरेलवी कहते हैं फिर के गली गली तबाह फिर ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। फिर इधर उधर हटने की जरूरत क्या है, फिर पक्की बात, खरी बात, दो टोक बात। हुजूर ने फरमाया मुकद्दम करो। दूसरा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए। हमने ना वाबस्तगियाँ दुनियादारी के लिए रखी हुई है। मैं उसके घर जाऊंगा तो फिर वो मेरे घर आएगा, मैं उससे मिलूंगा तो फिर वो मुझसे मिलेगा, ये मेरा ग्रुप है तो ये मेरा गिरोह है। इसमें ना आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते तंग होने लगते हैं। ज़ातियात के लिए मैंने तो देखा है, लोग रमज़ान में इफ्तारियाँ कराते हैं तो वो भी सियासी होती है, वो भी सियासी है। लेन देन है सदके खैरात के नाम पर तो वो भी देख के मेरे कल को काम कौन आए। अपना वोट बैंक देख के लोग नेकी करने की कोशिश करते हैं। ओ मेरे भाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयत तंग होने लग जाएगी, आप पर खैर का काम बोझ बनने लग जाएगा। बंदे देख के काम करोगे तो कितना को करोगे। मेरे महबूब ने फरमाया अगर ईमान का जायका लेना है ना तो फिर जिससे भी प्यार करो रब रसूल के लिए करो, फिर खालिस हो जाओ, खालिस खालिस। और तीसरी बात फरमाया अगर चाहते हो ईमान का जायका मिले तो ईमान कबूल करने के बाद कुफर की तरफ लौटना तुम्हें इतना ही नापसंद हो जितना कि आग में जाना नापसंद होता है। हमारे यहाँ ना लोग समझते हैं कि जो आदाए दीन है उनसे बेजारी ठीक चीज़ नहीं, हालांकि ये ज़रूरी काम है। दीन में जहाँ मोहब्बत का जिक्र है ना अल्लाह रसूल के लिए, वहाँ अदावत का जिक्र है। जब तक आप ये समझेंगे नहीं ना ये जो काफिर है, ये जो मुशरिक है, ये जो बुत के सामने खड़ा है, ये गलत कर रहा है। हमारे ज़माने में ये हुआ कि चूँकि अदब को, शायरी को फ़रोग़ हुआ तो कुछ लोगों ने कच्ची पक्की बातें भी शुरू कर दी। मसलन मैंने देखा बाज़ सियासतदान, बाज़ अदीब, बाज़ शायर और बाज़ कवाल वो कहते हैं कि सारे किसी न किसी रंग में अल्लाह को ही पुकारते हैं, सारे रूप अल्लाह के हैं। वो खुदा के बंदे अगर सारे माज़ अल्लाह किसी न किसी रंग में अल्लाह को ही पुकार रहे थे तो फिर हुजूर ने बुतों के खिलाफ जिहाद क्यों फरमाया। आपकी वो जो बेजारी है ना कुफर से, मेरी बात पे तवज्जो है आप। मैंने इस साल रबीउल अव्वल पे दोस्तों से ये कहा था कि याद रखना हम ज़रूरियात का इल्म नहीं सीखते, फारिग भी होते हैं फिर भी नहीं सीखते। उलमा कहते हैं आ जाओ पढ़ो फिर भी नहीं पढ़ते, मुफ्त पढ़ो फिर भी नहीं पढ़ते। तुम्हारी मर्जी का वक्त देते हैं, मगरिब बाद पढ़ सकते हो, इशा बाद पढ़ सकते हो, फजर बाद क्लास लगा लें फिर भी नहीं लोग आते। मैं थोड़ा सा घूमा, मैंने देखा है कि
आम आदमी नहीं, दुनियावी लिहाज से पढ़ा लिखा, वो अपनी हाथों से बुत बना रहा है। उसका कान टूट गया तो मरम्मत भी कर रहा है, और उसी के सामने वो इबादत के लिए भी खड़ा है। ये जो जानवर का पेशाब पी रहे होते हैं, ये कोई दुनियावी तौर पर अनपढ़ तो नहीं होते। इनकी आप गुफ्तगू सुने तो वो बड़ी आलमी सतह के मसाइल डिस्कस करते हैं। और भाई हम तो आम जरूरत के फराइज का इल्म हासिल नहीं कर पाते। अगर हमें तहकीक करके दीन पे चलना पड़ता तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। हमारा हक ज़्यादा है हुजूर से मोहब्बत करने का, मिलाद मनाने का, कि हम पर खुदा ने ख़ास फजल किया है, पैदा ही उस घर में किया है कि अम्मा ने कलमा पढ़ा दिया, अब्बा ने कलमा पढ़ा दिया है। बड़ा मुश्किल काम था हमारे लिए, बड़ा मुश्किल। ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब बात इरशाद फरमाई। कहने लगे, मैं शुक्र करूं कितना, फख्र करूं कितना, तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया और बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। तो अगर चाहते हैं कि लज्जत, यार कभी तो सोचा करो ना कि खुदा ने बचा लिया है सजदों का दौर कभी तो, लेकिन वो नापसंदीदगी जो मुशरिकाना रस्म रिवाज से हमारे ज़हनों में होनी चाहिए थी, हम पैदा ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं करते, ये साहस ही नहीं उस चीज़ का लाते। तो हुजूर से जब आप प्यार करते हैं ना, ये एक हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा था, बताओ इस्लाम की मजबूत गिरा कौन सी है? सहाबी ने कहा हुजूर नमाज। शारीन कहते हैं वो इसलिए उन्होंने कहा कि 5 वक्त लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो गिरा में बंध जाते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात माना क्या है कि अमीर गरीब को देता है, आपस में गिरा बंध जाती है, ताल्लुक बन जाता है। फरमाया तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह फिर हज, क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान एक लिबास में एक बोली बोलते एक मैदान में इकट्ठे होते हैं, तो ये मजबूत गिरा है। पर मैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। तो या रसूल अल्लाह फिर आप बता दें। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, इस्लाम की मजबूत गिरा मोहब्बत है। अल्लाह रसूल के लिए प्यार करना, रब रसूल के लिए बुग़्ज़ रखना, ये मजबूत गिरा है। आप जब अपनी सतह से थोड़ा उठ के बाहर सोचते हैं ना, आपके जज्बात में इखलास आता है और आप समझते हैं कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैंने उस एंगल से सोचना है कि अल्लाह रसूल मुझसे राजी रहे। फिर आप महसूस करते हैं कि बहुत सारी दुनियादारी, बहुत सारी रियाकारी, बहुत सारी पसंदों, बहुत सारी बनावट, बहुत सारे मुफादात वैसे रुखसत हो जाते हैं। मैं बस बात समेटने लगा हूँ, आप मेरी बात पर गौर करेंगे। कोई भी काम ऐसा ना करें, कोई भी। मैंने देखा है कि मजहबी दीनी खिदमत करने वाले लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि खतीब साहब मेरा नाम है। यानी मस्जिद में टाइलें लगवाई हैं, अल्लाह के लिए लगवाई हैं ना, तो आखिरी टाइल पे अपना नाम क्यों लिखवाया? ख़त्म शरीफ पे मैं चला गया, ख़त्म शरीफ पे तो मुझे ना कुल शरीफ का ख़त्म था तो दिया कि 25,000 कुरान पढ़ पढ़ाई और इतने लाख दुरूद शरीफ है। मैं अपनी तवज्जो से मैंने दुआ मांगी, मैंने कहा भी या अल्लाह जो पढ़ा हुआ है। बाद में एक साहब ने कहा कि आपने बताई, मैंने कहा किसको बताना था? अगर तो आपने अल्लाह को बताना था माज़अल्लाह, तो उसे तो पता है किस कोने में बैठ के किसके लिए किसने क्या पढ़ा, रब को तो पता है। और अगर आपने लोगों को बताना था तो फिर तो बात समझ में नहीं आती। ये काम एक बंदा अब्बा जी के नाम पर 50,000 मस्जिद में देने लगा। मेरा प्यार था उस घर से, तो मुझे कहने लगे पीर साहब आप ऐलान कर दें, ये 50,000 मस्जिद को देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि अब्बा जी क्या दे गए आप? माशाल्लाह काफ़ी ज़मीन है, दुकानें भी है। मैंने कहा उन्होंने भी मस्जिद में ऐलान कराया कि मुफ्ती दे गए। तो मैंने कहा इतनी करोड़ों की जायदाद में से 50,000 देने लगा, उसका भी ऐलान करा रहा। वो दे दे तू लग जाएगा। और वैसे भी जो मुसल्ले पे खड़ा है उसको अपने से ज्यादा दयानतदार समझोगे तो फिर ही नमाज पढ़ोगे ना पीछे।
तो थोड़ा सा ना चीज़ों को समझना चाहिए। आप जब इन चीज़ों में आ जाते हैं ना तसन्नुं में, तो वो आपके लिए मुश्किल होती है। किसी का क्या जाए। मैंने देखा है कि जिस बंदे को स्टेज पे बैठने की आदत पड़ जाती है ना, वो बेचारा महफिल में कभी आ भी जाए, बैठना पड़ भी जाए तो गर्दन ऊंची कर करके दिखाता है, छोड़ते इन चक्करों। वो लोग जो पीछे थे वो मजेदार थे। उठ ना भुले चलना उठे वसीले, जिथे बसते नहीं सारे यन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मन्ने। ये चीज आपको हुजूर की मोहब्बत से मिलती है। नहीं उन लोग ना यार, आप इस राम को समझते नहीं कि हजरत सिद्दीक अकबर जैसे आदमी सड़कों पे सोया करें, हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार झाड़ू दिया करें मस्जिदों में। आप कभी इस कैफियत को समझे। ये कब होता है? जब मोहब्बत खालिस होती है। बात खत्म करने लगा हूँ। 2-3 दिन के बाद एक सियाफी ने हुजूर की ज़ियारत की, चेहरा नूर देख के अर्ज़ की, हुजूर मैं कुर्बान जाऊँ, ज़ाहिर कमज़ोरी देख रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया कई दिनों से कुछ नहीं खाया। ये भी याद रखना, हुजूर को गरीबी पसंद है, मजबूरी नहीं लगती। फ़क्र हुजूर की पसंद है। यानी हमारे जो गरीब है ना, ये जिस बात से हर वक्त परेशान है ना, हुजूर ने तो ये चीज़ दुआ मांग के ली है। एक वक्त रोटी और बाकी फाका, हुजूर ने तो दुआ मांगी है। पर क्या करें, हकीकतों का रास्ता इख्तियार करें तो जब ही है ना। सियाफी कहते हैं जब मैंने सुना कि कई दिनों से कुछ नहीं कहा तो मैं दौड़ा घर गया। घर में कुछ है जाके क्या कहा, यार कोई मजदूरी मिलेगी बच्चों के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, फर्नीचर के लिए नहीं, महबूब की नौकरी। किसी ने सिर दस्तारे इमामत ने उस इल्म पढ़ा मन सीखे, किसी ने पहने फकर चोगा उस जोहद कमावन सीखे। सजना वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सीखे। फरमाते हैं कि मैं ना, उन्होंने उनसे कहा मजदूरी मिलेगी, तो उन्होंने कहा मिल जाएगी, लेकिन पानी ज़रा गहरा हो गया कुएं में, एक पानी का डोल निकालोगे फिर मजदूरी मिलेगी। कहते मैंने कपड़ा बिछा लिया, चादर माल परना बिछा लिया, एक डोल पानी का निकालता, दरख्त में डालता जड़ में, और मैं एक खजूर लेता। जब वो झोली भर गई तो मैं लेके हुजूर की बारगाह में आया। कहते हैं महबूब की बारगाह में पेश किया। हुजूर ने खजूर उठा के मुंह में रखी और मुख्तसर सादे हसीन और आला जुमले। हुजूर फरमाने लगे किस चीज ने तुझे मजबूर किया? ये जो मेहनत करके लेके आया तो किस चीज ने मजबूर किया? अर्ज की सोनिया सादी सी बात है, हमारी मजबूरी हमारी मोहब्बत ही है। ये मोहब्बत मजबूरी बन गई, मोहब्बत नहीं मजबूर किया है। तो वहाँ हुजूर ने जो इनाम का ऐलान किया ना, वो भी याद रखने वाला है। पर मैं अगर मुझसे प्यार करता है तो फख्र के लिए तैयार हूँ, फख्र के लिए तैयार हूँ। मोहब्बत करें, मोहब्बत आपको जायका भी देगी, बचा भी लेगी। और ये जो मुफ्त की परेशानी सीने में हर वक्त रहती है ना, क्या होने लगी, इससे आप निकल जाएं। आप महसूस करेंगे कि हम तो किसी काम लग गए। एक तस्बीह छोटी रख लें हाथ में, 1-2 दिन लोग कहेंगे ये क्यों रखी है, फिर पता चल जाएगा इसने पक्की रख ली। तस्बीह हाथ में होना तो चलती भी रहती है, वो चलेगी तो आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ेंगे तो 10 रहमतें आएंगी। तो आपने जब पढ़ते ही रहना है तो रहमतों ने आते ही रहना है। तो फिर मुझे बताइए ना, कोई मुश्किल रहेगी, कोई बेकरारी रहेगी, कहीं आप बेसुकून होंगे? अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मालिक करीम हमारी हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए।